السلام علیکم عزیز ساتھیوں، میں آپ کا دوست حکیم اعجاز عزیزی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں FTJ یعنی فاضل الطب والجراحات کے 4 سالہ کورس کے ویڈیو لیکچرز کے ساتھ۔ یہ ویڈیو لیکچرز نیشنل کونسل فار طب حکومت پاکستان کے منظور شدہ نصاب کے مطابق تیار کیے گئے ہیں۔ ہم ان لیکچرز میں آپ کو FTJ سال اول کے اناٹومی کے مختلف ٹاپکس کے بارے میں بتائیں گے، مختلف ٹاپکس کی تشریح بیان کریں گے اور ان پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں آپ کو اناٹومی کی ڈیفینیشن بتائی، اناٹومی کی مختلف برانچز پر تفصیل سے گفتگو کی، انسانی جسم کی ابتدائی ساخت پر گفتگو کی، انسانی جسم کے خلیے پر اور اس کے جو جتنے بھی حصے ہیں ان پر تفصیل سے بات چیت کی۔ اس کے بعد ہم نے کروموسومز اور سیل ڈویژن کے حوالے سے گفتگو کی۔ تو آج کے اس ٹاپک میں یعنی ہم اپنے تیسرے لیکچر کے پارٹ 1 میں انسانی جسم کے مختلف اعضاء کا مختصر بیان کریں گے، یعنی شارٹ سمری آف باڈی پارٹس، ہیومن باڈی پارٹس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے، چونکہ یہ لیکچر کافی لمبا تھا اس لیے ہم نے اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ پہلے پارٹس میں ہمارے جو ٹاپکس ہوں گے ان میں ہم جلد کے بارے میں پڑھیں گے، اعصاب یعنی نروس کے بارے میں پڑھیں گے، عروق یعنی بلڈ ویسلز کے بارے میں پڑھیں گے، اور آلات دوران خون کے آرگنز یعنی بلڈ سرکولیٹری آرگنز کے بارے میں پڑھیں گے، اور اسی طرح سے لمفاوی آلات یعنی لمفیٹک آرگنز کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آئے گا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میرے YouTube چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں انسانی جسم کے اعضاء کا مختصر بیان، شارٹ سمری آف ہیومن باڈی پارٹس۔ سب سے پہلے ہم سکن پہ بات کرتے ہیں۔ سکن یعنی ہماری جلد، یہ جسم انسانی کی جلد کی آپ کو بہت بڑی زوم کر کے ایک تصویر دکھائی گئی ہے، بلکہ اس کو میں تھوڑا سا اور بھی زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ کو پوری سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ انسانی جسم کی جو جلد ہوتی ہے اس کو اگر کراس میں کاٹ کر مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جائے تو اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ انسانی جسم کی جو جلد ہوتی ہے اس کی 3 تہیں ہوتی ہیں۔ یہ سب سے بیرونی تہ ہوتی ہے جس کے سے باہر بہت سارے مسامات نکلے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، بال یہاں سے باہر نکلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ ہمارے جو جتنے بھی بیرونی احساسات ہوتے ہیں، بیرونی بیکٹیریا سے، جراثیم سے، مضر زہریلے اثرات سے، مضر زہریلی چیزوں سے اندرونی جسم کی حفاظت کرنا ہماری جلد کی یہی بیرونی تہ ہوتی ہے جسے ایپیڈرمس بولتے ہیں، اور یہ باہر کی تہ ان سب چیزوں سے ہمارے جسم کو محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جو جلد ہوتی ہے اس کی ایک درمیانی تہ بھی ہوتی ہے جس کو ڈرمس بولتے ہیں۔ اس میں بلڈ ویسلز پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ جو ویٹ گلینڈز ہوتے ہیں، پسینے کے گلینڈز ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے جو بال جلد سے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان کی جڑیں ڈرمس میں پائی جاتی ہیں یعنی درمیانی تہ میں پائی جاتی ہیں، اور ہمارا جتنا بھی احساسات کا نظام ہے، نروز کا جو پھیلاؤ ہے وہ اسی تہ میں پایا جاتا ہے۔ سب سے نیچے اندر کی جانب ایک اور تہ بھی ہوتی ہے جس کو ہائپوڈرمس کہتے ہیں، اور یہ اندرونی تہ۔ چلیں ان سب تہوں کے بارے میں، جلد کے بارے میں تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں۔ جلد جسم انسانی کا سب سے بڑا اور وسیع عضو ہے جو کہ 3 تہوں پر مشتمل ہے۔ جو سب سے بیرونی تہ جس کا ہم نے ذکر کیا جسے ایپیڈرمس کہتے ہیں، یہ جلد کی سب سے اوپر والی تہ ہے، اور یہ جسم کو پانی، جراثیم اور دیگر مضر اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ جو دوسری تہ ہے وہ ڈرمس کہلاتی ہے۔ یہ جلد کی درمیانی تہ ہے جس میں خون کی رگیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف رگیں دکھائی دے رہی ہیں، کنیکٹیو ٹیشوز، پسینے کے حدود اور بالوں کی جڑیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اندر کی سب سے جو اندر کی جانب تہ ہوتی ہے اسے ہائپوڈرمس بولتے ہیں۔ یہ آپ کو اس کے ساتھ ٹیگنگ کی اردو میں بھی اور انگلش میں بھی نظر آ رہی ہوگی۔ یہ جلد کی سب سے نچلی تہ ہے جو کہ کنیکٹیو ٹیشوز اور چربی سے بنی ہوتی ہے۔ انسانی جسم کی جو جلد ہوتی ہے وہ تمام اندرونی اعضاء کو جراثیم سے اور مضر اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ جلد تمام اندرونی اعضاء کو ڈھانپتی ہے اور اندرونی اعضاء کو ٹھوس ساخت اور جسامت پر قائم رکھتی ہے۔ جلد جسمانی درجہ حرارت کو برقرار رکھتی ہے۔ احساسات یعنی سردی و گرمی وغیرہ کے احساسات جلد سے ہی جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جلد کا رنگ جلد کی پہلی تہ یعنی ایپیڈرمس میں موجود مخصوص خلیے میلانوسائٹس میلانین کے ذریعے بناتے ہیں۔ یعنی جو رنگت ہوتی ہے انسانی جسم کی، انسانی جلد کی جو رنگت ہوتی ہے وہ یہ جو ایپیڈرمس ہوتی ہے جو سب سے باہر والی تہ ہوتی ہے، اس کے مخصوص خلیے، اس میں مخصوص قسم کے خلیے پائے جاتے ہیں جنہیں میلانوسائٹس بولتے ہیں۔
जो कि मेलानिन के जरिए ये कलर इंसानी जल्द का बनाते हैं। इसी तरह से जल्द में पसीना के गुदूद पाए जाते हैं जिनके जरिए जिस्म में मौजूद पानी व नमकियात जिस्म से खारिज होते हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने देखा, इस लेक्चर में की जो पहला हिस्सा है उसमें हमने देखा कि जल्द क्या चीज़ है, जल्द कितनी तहों से बनी हुई है और जल्द का फंक्शन क्या है, और इसी तरह से हमने हर तह को अलग अलग समझने की कोशिश भी की। इसी तरह से हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो एसाब के बारे में है, यानी नर्वस सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उनके बारे में है। ये स्क्रीन पे आपको एक इंसानी जिस्म का ढांचा एसाब के साथ दिखाया गया है, जिसमें दिमाग जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं यानी ब्रेन, और हराम मगज स्पाइनल कार्ड, और जिस्म में फैले हुए मुल्हिका या मुहिती एसाबी निज़ाम जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। यानी हमारे जिस्म में ये पूरा एक एसाबी निज़ाम का जाल फैला हुआ होता है, जिसमें सबसे मरकजी किरदार दिमाग का होता है, फिर हराम मगज का होता है, और उसके बाद पूरे जिस्म में फैले हुए नर्व्स का होता है। तो ये ड्रॉप डाउन एक पिक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, इसमें पूरे एसाबी निज़ाम की मालूमात फराहम की गई है। यानी नर्वस सिस्टम या एसाबी निज़ाम क्या चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके इसको दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एसाबी निज़ाम क्या चीज़ होती है। एसाबी निज़ाम जिसमें इंसानी का सबसे आम हिस्सा है, जो कि जिस्म में ऊपर की जानिब वाक़े है, यानी सबसे ऊपर एसाब ही है। एसाबी निज़ाम में दिमाग, हराम मगज, एसाब और हवास खमसा मिलकर पूरे जिस्म के निज़ाम को कंट्रोल करते हैं। एसाबी निज़ाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम या मरकजी निज़ाम एसाब कहते हैं, जबकि दूसरे को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या मुल्हिका एसाबी निज़ाम कहते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। ये आप सामने टेबल में देख सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या मरकजी निज़ाम एसाब। इसमें ये दिमाग और हराम मगज पर मुश्तमिल होता है, जो कि इत्तलात व पैगामात को परखता है, प्रोसेस करता है और उसके मुताबिक मुनासिब फैसला करके मुतालिका उसको हुक्म पहुंचाता है। यानी जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो हिस्से हैं, एक को दिमाग कहते हैं यानी ब्रेन, और दूसरे को हराम मगज यानी स्पाइनल कार्ड कहते हैं। दिमाग खोपड़ी में महफूज होता है और ये एसाबी निज़ाम का सबसे आम हिस्सा है, जिसमें तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं, और ये पूरे जिस्म का कंट्रोल सेंटर भी कहलाता है। दिमाग में ही हर तरह की फैसला साजी होती है, यादाश्त यहीं पे महफूज होती है, शऊर का रिकॉर्ड हो या लाशऊर का रिकॉर्ड हो वो यहीं पर महफूज होता है। जिस्म के रज़ाकाराना अफ़आल यानी जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है, जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, दिल की धड़कन को कंट्रोल में रखना, सांस का निज़ाम, हाजमा का निज़ाम वगैरह का सब का कंट्रोल दिमाग के तहत ही होता है। इसी तरह से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो दूसरा हिस्सा है उसे हराम मगज या स्पाइनल कार्ड कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर महफूज होता है, दिमाग से जुड़ा हुआ होता है और नीचे कमर तक चला जाता है। इससे न्यूरॉन का एक बड़ा मजमा गुजरता है और ये दिमाग के साथ पैगामात की वसूली और पैगाम रसानी में मदद फराहम करता है। ये तो दो हिस्से हो गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। अब हम आपको दिखाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या मुल्हिका या मुहिती एसाबी निज़ाम। ये क्या चीज़ होती है? ये न्यूरॉन या एसाब पर मुश्तमिल हिस्सा है जो मरकजी एसाबी निज़ाम से दूर जिस्म के तमाम अज़ा के एहसासात और पैगामात को मरकजी एसाबी निज़ाम तक पहुँचाता है, और फिर मरकजी एसाबी निज़ाम से हुक्म व पैगामात तमाम अज़ा तक पहुँचा देता है। इसके दो हिस्से हैं, एक को हम कहते हैं हरकी एसाब और दूसरे को हिस्सी एसाब। हरकी एसाब का काम क्या होता है? ये एसाब मरकजी निज़ाम से हुक्म लेकर मुतल्लिका उज़्व तक पहुँचाते हैं और उस को हरकत देते हैं। जो सेंसरी नर्व्स हैं या हिस्सी एसाब होते हैं, ये एसाब जिस्म के तमाम अज़ा यानी दिमाग से दूर के जितने भी अज़ा हैं उनके एहसासात व पैगामात मरकजी एसाबी निज़ाम यानी दिमाग व हराम मगज तक पहुँचाते हैं। तो ये आपको तस्वीर से मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है दिमाग का और हराम मगज, ये जो आपको लाइन सी मोटी नजर आ रही होगी, ये दो हिस्से कहलाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो पूरे जिस्म में पतले लाइनें येलो कलर की आपको दिखाई गई हैं, ये जो पूरे जिस्म में फैली हुई है इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या मुल्हिका या मुहिती एसाबी निज़ाम। यहीं पर आपको इस कॉर्नर में ये दो तरह की तस्वीर दिखाई गई हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तस्वीर इस तरह से होगी कि दिमाग और हराम मगज
दिमाग खोपड़ी में महफूज और हराम मगज रीढ़ की हड्डी में महफूज, जबकि पूरे जिस्म में जो खलियात एसाबी निज़ाम के फैले हुए हैं वो इस शक्ल में फैले होते हैं। तो इस स्लाइड में हमने एसाब और एसाबी अज़ा के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि ब्लड वेसल्स या अरूग या रगें क्या चीज़ होती है। सामने तस्वीर में आप देख सकते हैं, आपको आर्टरीज यानी शरियाने, वेन्स यानी वरीदें और कैपिलरीज यानी रुके शरीय दिखाई गई हैं। ये हमारे जिस्म में पाई जाने वाली रगें हैं जिन्हें ब्लड वेसल्स बोलते हैं। हमारे जिस्म से खून को ये रगें पूरे जिस्म तक पहुंचाती हैं। कैपिलरीज से ग़िज़ा पहुंचाती हैं और ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। कैपिलरीज से वहाँ पे ये इसका जिस्म में एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। ब्लड में शामिल खुराक के अज्जा या दीगर जो इम्पॉर्टेंट अज्जा होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, इसी तरह से ऑक्सीजन होती है, कैपिलरीज के जरिए इनकी, क्योंकि कैपिलरीज की बारीक जली नुमा दीवारें होती हैं तो उसे ये जिस्म में जज़ब हो जाती है और फिर जो बाकी खून रह जाता है जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, यानी ऐसा खून जिसमें से ऑक्सीजन निकल चुकी होती है, वो वेंस के जरिए वापस दिल में आता है। ये नाली नुमा अजसाम है पाइप की तरह से जो अंदर से खाली होते हैं, जिस पाइप से दिल से खून पूरे जिस्म में जाता है, जिस्म में ग़िज़ा और ऑक्सीजन पहुंचाता है और वापस दिल की तरफ आ जाता है। अब इसको हम तफसील से देखते हैं। अरूग या रगें जिसमें इंसान में पाइप या नलकी जैसे अजसाम हैं जो कि बदन में खून की तरसील के जिम्मेदार हैं। रगें 3 अक़साम की पाई जाती हैं जिन्हें शरियाने, वरीदें और उरूक़ शरिया या कैपिलरीज कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं शरियान की चीज़ें। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो सुर्ख रंग का हिस्सा है ये आर्टरी या शरियान है। शरियान 3 तहों से मिलकर बनी होती है। जो सबसे बैरूनी तह होती है वो फाइबर्स से बनी होती है, यानी फाइबरस टिश्यू से बनी होती है। इसको बैरूनी तह भी कहते हैं और ट्यूनिका एक्सटर्ना भी कहते हैं। इसके बाद एक दरमियानी तह होती है जिसको ट्यूनिका मीडिया या दरमियानी तह कहते हैं और ये मस्कुलर टिश्यू से बनी हुई होती है। इसी तरह से इसकी जो सबसे अंदरूनी तह है वो एपिथेलियो स्क्यूमस एपिथेलियो टिश्यू से बनी हुई होती है और ये सबसे अंदर की जानिब होती है और इसको ट्यूनिका इंटरना कहते हैं, यानी अंदरूनी तह। यानी जो आर्टरीज होती हैं, जो शरियानें होती हैं, वो 3 तहों से मिलकर बनी होती हैं। सबसे बैरूनी तह फाइब्रस टिश्यू की, दरमियानी तह जो तह होती है वो मस्कुलर टिश्यू की और अंदरूनी तह जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यूज की होती है। जो शरियानें होती हैं वो निस्बतन मोटी होती हैं। ये शरियानें जैसे जैसे दिल से दूर जाती हैं और जिस्म में फैलती हैं तो ये पतली होती जाती हैं, जिनको आर्टेरियोल्स बोलते हैं और ये आगे जाकर कैपिलरीज से मिलती हैं। शरियानों का काम क्या होता है? शरियानें दिल से साफ खून लेकर पूरे जिस्म तक पहुंचाती हैं, सवाए पल्मोनरी आर्टरी के, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी गंदा खून फेफड़ों में साफ करने के लिए लेके जाती है। यहाँ पे ये आपको ये टेक्स्ट पढ़ सकते हैं कि शरियानें साफ खून को दिल से लेकर जिस्म के तमाम अज़ा तक पहुंचाने का काम करती हैं, सवाए पल्मोनरी आर्टरी के, यानी पल्मोनरी आर्टरी दिल से गंदा खून फेफड़ों में सफाई के लिए लेकर जाती है। अब हम पढ़ते हैं वेंस के बारे में या वरीदों के बारे में कि इस जानिब तस्वीर में आपको ये नीले रंग का जो पाइप सा दिखाई दे रहा है ये वेंस होती हैं। वेंस भी 3 तहों से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन ये निस्बतन आर्टरीज से पतली होती है। इसकी जो बैरूनी तह होती है वो फाइब्रस टिश्यू से ही बनी होती है। इसी तरह से इसकी जो दरमियानी तह होती है वो मसल से बनी हुई होती है, मस्कुलर टिश्यू से बनी होती है और इसी तरह से जो सबसे अंदरूनी तह होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर मुवाजना करें, थोड़ा गौर से देखें तो इसकी ये जो चौड़ाई है दरमियानी टिश्यू की ये ज्यादा है, जबकि वेन की या वरीद की जो दरमियानी तह है वो निस्बतन पतली है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और फर्क भी दिखाई दे रहा होगा, जो आर्टरी है वो उसमें होल सुराख जो है वो खुला है, जबकि जो वेन है उसमें दरमियान में एक आपको रुकावट सी नजर आ रही होगी। ये रुकावट क्या है? ये रुकावट वेन्स में पाई जाने वाली वाल्व्स हैं। ये वाल्व्स खून को वापस पीछे की जानिब जाने से रोकते हैं और ये खून दिल की जानिब ही रवान दवा रहता है। इसकी जो 3 तह होती हैं, जो बैरूनी तह है उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना ही बोलते हैं, दरमियानी तह ट्यूनिका मीडिया या दरमियानी तह बोलते हैं जो निस्बतन पतली होती है, और अंदरूनी तह जिसको ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं जो सबसे अंदर की जानिब होती है। वेंस का किरदार क्या होता है?
वैन सारे जिस्म से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा खून जिसमें से ऑक्सीजन जिस्म में जज़ब कर ली गई हो और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो वापस लेकर दिल की जानिब आता है, सिवाय पल्मोनरी वैन के, क्योंकि पल्मोनरी वैन फेफड़ों से साफ खून दिल तक पहुंचाता है। यहाँ पे टेक्स्ट के आपको अगर दो कलर नजर आ रहे हो तो वरीद का कलर ये आपको दिया गया कि वरीद गंदा खून लेकर आती है, लेकिन पल्मोनरी जो वैन होती है वो फेफड़ों से साफ खून लेकर दिल तक पहुंचती है। यहाँ पे रेड कलर को साफ खून से तशबीह दी गई है और जो ब्लू कलर है उसको डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से तशबीह दी गई है। अब तीसरा जो पार्ट है वो है कैपिलरीज यानी अरूक शहरिया। ये क्या है? यहाँ पे ये दरमियान में आर्टरी और वेन के दरमियान में ये आपको एक जाल सा नजर आ रहा होगा, एक नेट सा बना हुआ नजर आ रहा होगा। इस हिस्से को जहाँ पर आर्टरीज बहुत बारीक हो जाती हैं, इंतहाई बारीक, बाल से भी बारीक हो जाती हैं, तो इस हिस्से को कैपिलरीज बोलते हैं या अरूक शहरिया बोलते हैं। ये एक ही तह से बनी होती हैं जो कि एंडोथेलियल सेल से बनी होती है, यानी ये जिस तरह से आर्टरीज और वेन्स तीन तीन तहों से बनी होती हैं, कैपिलरीज तीन तहों से नहीं बनी होती, बल्कि कैपिलरीज एक ही तह से बनी होती है जो कि एंडोथेलियल सेल से की झिल्ली होती है। और इस झिल्ली से खून में जितने भी ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, ऑक्सीजन होती है या दीगर ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, वो जिस्म में जज़ब हो जाते हैं। और इसी तरह से जिस्म में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के अज़ा में पाई जाती है, वो इन कैपिलरीज के जरिए खून में जज़ब हो जाती है और वेन्स के जरिए वो दिल में पहुंचती है और दिल उनको फेफड़ों में साफ करने के लिए पहुंचा देता है। इस स्लाइड में हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा अपने इस लेक्चर के इस पार्ट में। ये हमारे तीसरे लेक्चर का पहला पार्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी आर्गन्स या आलात दौरान खून कौन कौन से। हमारे जिस्म में खून का एक मुकम्मल निज़ाम मौजूद है जिसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। जैसा जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें भी हमने जिक्र किया था कि हमारे जिस्म में खून दौरान खून का एक मुकम्मल निज़ाम है जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। उस निज़ाम के जो हिस्से हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट दिल है, यानी दिल खून को पंप करता है। ये खून आर्टरीज यानी शरियानों के जरिए जिस्म तक पहुंचता है। कैपिलरीज से जिस्म में वो एब्ज़ॉर्ब, उसके ग़िज़ाई अज्जा एब्ज़ॉर्ब होते हैं, ऑक्सीजन एब्ज़ॉर्ब होती है और वेन्स के जरिए दोबारा ये दिल में वापस आ जाता है। इस तस्वीर को मैं आपको थोड़ा जूम करके बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप इस तस्वीर में, ये दिल दिखाया गया है। दिल का काम है खून को फेफड़ों से साफ करवाना, यानी फेफड़े दिल की मुआवनत करते हैं, खून से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर देते हैं और ऑक्सीजन को पैर के माहौल से जज़ब करके दिल तक पहुंचाते हैं और दिल साफ खून को फिर पूरे जिस्म तक पहुंचा देता है। यहाँ ये जो शक्ल दिखाई गई है इसमें आपको ये दिल से निकलती हुई बड़ी जो शरियान है, शरियान आज़म जिसको एओर्टा बोलते हैं, इसके जरिए खून साफ खून दिमाग की तरफ जाता है और निचले धड़ के या पेट के और दीगर जितने भी अज़ा हैं उनकी जानिब जाता है। आगे हर उसके पास जो कैपिलरीज होती हैं, सिंगल लेयर की जो कैपिलरीज होती हैं, उनके जरिए ये साफ खून, इसमें से ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा वहाँ पे जज़ब हो जाते हैं। वहाँ से जिस्म के अज़ा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है या जो दीगर फासिद मादे होते हैं, वो इन कैपिलरीज की सिंगल लेयर के जरिए खून में शामिल हो जाते हैं। ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ खून और दीगर फासिद मादों से भरा हुआ खून वेन्स में शामिल हो जाता है। इंफीरियर वेना केवा ज़ेरी वरीद आज़म और दिमाग से जो वापस खून आ रहा होता है वो बालाई वरीद आज़म यानी सुपीरियर वेना केवा के जरिए होता हुआ वापस दिल में चलाता है। तो ये एक मुकम्मल सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें दिल से लेकर पूरे जिस्म में आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज के जरिए खून का निज़ाम हर लम्हा चलता रहता है। तो अब इसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं उनको अलग अलग देखते हैं। यानी आलात दौरान खून कौन कौन से हैं? इसमें दिल है और रगें हैं। रगें कितनी हैं? 3 किस्म की हैं। कौन कौन सी? शरियाने हैं, वरीदें हैं और कैपिलरीज हैं। खून का काम या आलात दौरान खून का काम क्या होता है? ये जिस्म को ग़िज़ा और ऑक्सीजन फराहम करते हैं और जिस्म से फासिद मादों को लेकर जिस्म से खारिज करते हैं। ये तस्वीर में आप देख लें, दाईं जानिब जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो सबसे आम हिस्सा है आलात दौरान खून का, वो दिल है। इसके 4 खाने होते हैं, वो भी आपको दिखाए गए हैं। खून का फ्लो भी इसके अंदर दिखाया गया है
کہ کس طرح سے یہ لوور پارٹ سے اور یہ اپر پارٹ سے یعنی بالائی جانب سے اور نچلی جانب سے خون گریدوں کے ذریعے دل میں آتا ہے. دل اس کو صاف کرنے کے لیے پھیپھڑوں میں بھیج دیتا ہے. پھر پھیپھڑوں سے رائٹ لنگز اور لیفٹ لنگ سے صاف ہو کر خون کے بائیں چیمبر میں داخل ہوتا ہے یعنی بائیں خانے میں داخل ہوتا ہے اور بائیں خانے سے یہ صاف شدہ خون ایورٹا کے ذریعے جسم کے بالائی حصوں اور جسم کے ذریعی حصوں کی جانب چلا جاتا ہے. دل کے جو پٹے ہوتے ہیں وہ مخصوص قسم کے ہوتے ہیں جنہیں کارڈیک مسلز بولتے ہیں یعنی ان کے خلیے جو ہوتے ہیں وہ خاص قسم کے ہوتے ہیں جو جسم میں کسی اور عضو میں نہیں پائے جاتے ہیں. اس کا جو مقام ہے دل کا وہ سینے کی جو ہڈی ہوتی ہے جو سامنے کی ہڈی جسے سٹرنم بولتے ہیں اس کے پیچھے ہے. یہ پھیپھڑوں کے درمیان اور ڈایافرام کے اوپر واقع ہوتا ہے. دل کا حجم تقریباً 1 مٹھی کے برابر ہوتا ہے اور اس کا وزن تقریباً 250 سے لے کر 300 گرام تک ہوتا ہے. پھر جو دوران خون کے دوسرے اعضاء ہیں وہ ہیں شریانے. شریانے جن کو ریڈ کلر سے آپ کو دکھایا گیا ہے جنہیں آرٹریز بولتے ہیں. پچھلی سلائیڈ میں بھی ہم نے شریانوں پہ بات کی. شریانیں 3 تہوں پر مشتمل ہوتی ہیں. سب سے بیرونی تہ جو ہوتی ہے وہ فائبر سے بنی ہوتی ہے. درمیانی تہ جو ہوتی ہے وہ مسکولر ٹیشو سے بنی ہوتی ہے اور اندرونی تہ جو ہوتی ہے وہ ایپیتھیلیل ٹیشو سے بنی ہوتی ہے. شریانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ شریانیں دل سے صاف خون لے کر پورے جسم تک پہنچا دیتی ہیں سوائے پلمونری آرٹری کے کہ وہ پھیپھڑوں میں گندا خون لے کر جاتی ہے. پھر یہ تیسری رو میں آپ دیکھ سکتے ہیں برید کا ذکر ہے. یہاں پہ آرٹری کے ساتھ پورے جسم میں ریڈ کلر کی لائنیں دکھائی گئی ہیں پائپ سے دکھائے گئے ہیں یعنی سرخ رنگ کو صاف خون سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس سے آرٹریز کو دکھایا گیا ہے. وہ جو نیلا کلر ہے اس سے گندے خون یا ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو دکھایا گیا ہے اور پورے جسم میں یہ جو جال سے پھیلا ہوا ہے جو پائپ سے پھیلے ہوئے یہ بریدوں کے جال دکھائے گئے ہیں. بریدیں بھی 3 تہوں سے بنی ہوتی ہیں. بیرونی تہ جو ہوتی ہے وہ فائبرس ٹیشو سے بنی ہوتی ہے. درمیانی تہ جو ہوتی ہے جو کہ آرٹری سے نسبتاً پتلی مسکولر ٹیشو سے بنی ہوتی ہے اور اندرونی تہ ایپیتھیلیل ٹیشو سے بنی ہوتی ہے اور وینز میں والو بھی پائے جاتے ہیں. وینز کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کیپلری سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو جسم سے واپس دل کی طرف لے کے آتی ہیں سوائے پلمونری وین کے جو کہ پھیپھڑوں سے صاف خون دل تک لے کر آتی ہے. پھر یہ کیپلریز ہیں جیسا کہ پچھلی سلائیڈ پہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے پارٹ میں کہ کیپلریز انتہائی باریک بال سے باریک سنگل لیئرز پر مشتمل اکیلی لیئر پر مشتمل چھوٹی نلکیوں کا چھوٹے پائپس کی جیسی جسامت کا جال ہوتا ہے جو آرٹریز کی جانب سے جسم کو غذائیت اور آکسیجن پہنچاتا ہے اور جسم سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر فاسد مادوں کو یہاں پر وینز والی سائڈ پہ کیپلریز میں جذب کرتا ہے اور وینز کے ذریعے واپس دل تک پہنچاتا ہے. کیپلری یعنی انتہائی باریک رگیں ہیں جو بال سے بھی باریک ہوتی ہیں. یہ انڈوتھیلیل سیلز کی سنگل تہ سے بنی ہوتی ہیں. یہ اتنی باریک ہوتی ہیں کہ سرخلیوں کے ذرات بھی آگے پیچھے ہو کر گزرتے ہیں یعنی یہ اتنی باریک ہوتی ہیں کہ جو خلیے انتہائی باریک خلیے ہوتے ہیں وہ بھی دو یکساں وقت میں بیک وقت دو آپس میں جڑ کر نہیں گزر سکتے بلکہ یہاں سے گزرتے ہوئے وہ بھی آگے پیچھے ہو کر گزرتے ہیں. کیپلری سے غذائی اجزاء نمکیات پانی وغیرہ اعضاء میں جذب ہوتے ہیں. تو اس سلائیڈ میں ہم نے آلات دوران خون یعنی بلڈ سرکولیٹری آرگنز کا گہرائی کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر یہ سلائیڈز پسند آ رہی ہوں گی. ہم اپنی سلائیڈ پہ بات کریں گے لمفیٹک آرگنز کے بارے میں یعنی لمفاوی آلات کے بارے میں. یہ ایک تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی جس کو میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ گرین کلر کی کچھ جسامتیں پائپ سے نالیاں سی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے یہ بال سے بھی ہیں. ان کو الگ الگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. سب سے پہلے یہ تلی دکھائی گئی ہے. اس کے بعد یہ جو بال سے ہیں یہ لمفیٹک نوڈز ہوتے ہیں انہیں لمفاوی غدد بولتے ہیں اور یہ جو نلکیاں سی ہیں ان کو لمفیٹک ویسلز بولتے ہیں. اس کے یہ 3 امپارٹنٹ حصے ہیں. لمفیٹک نظام لمفیٹک سسٹم ہمارے جسم میں پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے. اس کا فنکشن کیا ہے اس کا کام کیا ہے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں. یہ دیکھ لیں اس کا نیٹ اس کا جال پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے. لمفاوی نظام یا لمفیٹک آلات میں کیا کیا چیز ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو تصویر زوم کر کے بھی دکھایا. لمفاوی غدود ہوتے ہیں جنہیں لمفیٹک نوڈز بولتے ہیں.
लिम्फावी उरूक या रगें होती है जिन्हें लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। ये लिम्फेटिक वेसल्स, तिल्ली होती है जिसे स्प्लीन कहते हैं, और थाइमस होता है। ये तो चार आम आलात मिलकर पूरा एक लिम्फेटिक सिस्टम बना देते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन्स या लिम्फेटिक आलात, लिम्फेटिक वेसल्स व नोड की सूरत में पूरे जिस्म में फैले हुए होते हैं। लिम्फावी नालियां यानी लिम्फेटिक वेसल्स खून की माहियत, खून की इजाफी रतूबात जो अज़ा में जज़ब होने से बच जाती है अपने अंदर जज़ब कर लेती है, और उस रतूबत में अज़ा से खारिज होने वाले फाजिल मादों को भी शामिल कर। यानी ये जो लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए पूरे जिस्म में फैला हुआ है, इसका फंक्शन ये होता है कि जब खून ग़िज़ाई अज्जा को पूरे जिस्म में फैला देता है, उसमें से जो आम ग़िज़ाई हिस्से होते हैं और ज़्यादातर जो उसके अज्जा होते हैं वो जिस्म के अज़ा अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसे अज्जा माहियतें बाकी बची रहती हैं जिन्हें वो अज़ा जज़ब नहीं करते या उनकी ज़रूरत से वो ज़ायद होते हैं। अब लिम्फेटिक निज़ाम जो है कुदरत का बनाया हुआ लिम्फावी आलात, उस जो इजाफी माहियत होती है, इजाफी लिक्विड होते हैं, इजाफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या जो भी फासिद मादे होते हैं उनको अपने अंदर जज़ब करना शुरू कर देते हैं। ये लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और आगे लिम्फेटिक नोड्स तक पहुंचा देते हैं। लिम्फेटिक नोड्स क्या करते हैं? लिम्फेटिक नोड्स उस जो माहियत जिस्म से जज़ब की गई होती है उसका मुआयना करते हैं, उसके ज़रीले जो अज्जा होते हैं उन्हें मार देते हैं, किल कर देते हैं, और उसके बाद जो साफ अज्जा रह जाते हैं उनको आगे की वेसल्स में दाखिल करते जाते हैं। और बिल आखिर ये क्या होता है कि ये कसावतें, ये जहरीले मादे साफ होने के बाद दोबारा से ये दिल को जाने वाली वरीदों में ये खून शामिल हो जाता है। खून उसके जो फासिद मादे होते हैं जो अभी भी उसमें कुछ रह जाते हैं उनकी सफाई के लिए गुर्दों को भिजवा देता है। गुर्दे वो फासिद मादे जिस्म से पेशाब की शक्ल में खारिज कर देते हैं। जो कुछ मजीद जो चीज़ें होती हैं वो फेफड़ों में सफाई के लिए चली जाती हैं। तो ये जो हमारा वेसल्स का निज़ाम है, जिस तरह से हमने अपने पिछली स्लाइड्स में भी पढ़ा था कि जिस तरह से खून पूरे जिस्म को ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन फराहम करता है, उसी तरह से लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो होते हैं उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। वो तमाम जिस्म में फैले हुए जितने भी इजाफी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, जितने भी फासिद मादे होते हैं, उनको इन वेसल्स के जरिए जज़ब करते हैं। लिम्फेटिक नोड्स उनकी फिल्ट्रेशन करते हैं, सफाई करते हैं, और दोबारा से उसको खून में शामिल कर दिया जाता है। यानी ये सबसे नीचे वाली अगर आप टेक्स्ट पढ़ें तो खून से जो रतूबात बज़रिया कैपिलरीज जिस्म के अज़ा तक पहुँचती हैं, उसमें ग़िज़ाई अज्जा, नमकियात, पानी, ऑक्सीजन, ये सब अज़ा जज़ब कर लेते हैं, जबकि कुछ रतूबात ऐसी होती हैं जो खलाओं में बाकी रह जाती हैं। अज़ा से जो फाजिल मादे उस रतूबत में शामिल होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम उसे जज़ब करके लिम्फ नोड्स यानी लिम्फावी खतूत तक पहुंचाता है। लिम्फावी खतूत उसको साफ करते हैं और दोबारा से वो दिल में आने वाले खून की उरीदों में शामिल कर दिया। तो इस स्लाइड पे हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? इस स्लाइड में हमने लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा कि वो कौन कौन से हैं और वो किस तरह से अपने अफ़ाल अंजाम देते हैं। यहाँ पे हम अपने तीसरे लेक्चर के पहले पार्ट को ख़त्म करते हैं। क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, इसलिए हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो तीसरे लेक्चर का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम आपके सामने जो टॉपिक्स लेके आएंगे उसमें हम उज़लात का यानी मसल्स का मुतालिया करेंगे, हड्डियों का यानी बोन्स का मुतालिया करेंगे, आलात तनफ़्फ़ुस यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का मुतालिया करेंगे, आलात हज़म यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का मुतालिया करेंगे। तीसरे लेक्चर का जो दूसरा पार्ट है उसमें हम इन चार चीज़ों के बारे में मुतालिया करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस लेक्चर के अगले पार्ट को देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।